So in this video, I'm going to solve the Arun Sharma 11th edition book. And this particular chapter is percentage, and all these questions are from level of difficulty 2. So let's try to understand and try to solve each and every question. Okay. So let's read the first question. And what's the question asking? So due to the 25% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 5 kg less for 200. Find the increased price of rice per kilogram. Okay. So this is the question that is based on the product constant. So let's try to do the solve the first question. So what is given to us? We all know like the price into consumption is equals to expenditure, right? See, whenever we find this kind of relationship, like the price into consumption is equals to expenditure, and there's also other kinds of relations that when we divide one value to other and found the third value, and this particular kind of relationship, then C is constant, then A is inversely proportional to B, right? This is the theory behind this question, right? So in this particular question, we also apply this kind of theory, right? So here, expenditure is given us to constant, which is 200 rupees, right? And the price, which is increased by 25%, right? Now we need to find, right, the consumption is decreased by 5 kg, right? See, the thing is, one thing is given the percentage and other is the direct 200 rupees 5 kg. So these are the things that we need to remind, like not all the things are given in the percentage, so we can't let any number and solve by like taking the 100 and solve these things. We have to let the number and connect to the real values and then try to find the solution. Okay, let's do it. So what is the thing, like 25%, the fraction is 1 by 4, right? So our price is increased by 4 to 5, right? Now the consumption is decreased by price is inversely proportional to consumption. So if the price is decreased by 4 to 5, then the consumption is increased by 5 to 4. But here, so the price and the consumption is basically will be 5 to 4, right? These are the let values, okay? These are the kind of thing that we let in the form of ratio. You can say like it's 5x, 4x, right? 4x, and these are the 4y, 5y. So these are the let values, okay? And the expenditure is fixed, which is 200. So what is given to us? That the consumption is decreased by 5 kg, right? So here the decrease is 1, right? But in actual value, it is given as 5. So we are connecting this 1 with 5 by multiplying 5, right? The same has to be multiplied here, which is 4 into 5, which is 20. So 20, what's 20 stands for? The 20 is basically our new consumption due to the price hike, right? And what is we asking? Right, what is the price per kilogram? So total price is 200 and we are buying 20 kg. So the price will be 10 rupees per kg, right? So these are the answer, 10. So let's move on to the second question. The second question was says that a fraction is such that if we double the numerator, right? If we double the numerator and triple the denominator and then change it by the 10% and the 30% respectively, then we get the 33% of 16 by 21. Okay, so we need to find the fraction. So let's try to solve this question. Okay, to solve the second question. So let's let the fraction be n by d. Okay, पहले लेट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो मेरा n by d है। तो वहां पे क्या बोला है कि पहले जो न्यूमरेटर है वो पहले डबल होगा एंड डिनोमिनेटर जो होगा हमारा ट्रिपल होगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो है वो 10% ऐड करना है और इसमें जो है माइनस का 30% माइनस करना है। ओके, और ये जो परसेंटेज चेंज होगा उसके बाद जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा वो कितना होगा, वो 33% ऑफ 16/21 का बनेगा, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रैक्शन जो है वो 10% बढ़ाना है, यानी 10 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/10, यानी अगर इंक्रीज हुआ है तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, राइट? इस 10 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2n दी हुई है। अगर हमें इसे 2n में कन्वर्ट करना है तो इसे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2n/10 से, राइट? तो सेम मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे भी होगी 2n/10 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 22n/10, राइट? एंड नाउ द डिनोमिनेटर को क्या करना है, 30% डिक्रीज करना है।
30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 होता है, राइट। तो 10 से जो है वो डिक्रीज होके 7 बन गया, राइट। इस 10 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, वो है 3D। इस 10 की जो वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 3D। 3D को लाने के लिए 3D/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 10 के लिए, एंड सेम मल्टीप्लीकेशन फिर हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, विच इज 3D/10, एंड सॉल्व करेंगे तो 21D/10, राइट। तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। इन दोनों का अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा था वो आ जाएगा। करना नहीं है, जो फ्रैक्शंस वैल्यूज हमें निकाली है वो अब इसे लिख देना है यहाँ पे। इट्स 22/n अपॉन में 21D अपॉन में 10, एंड विच इज इक्वल्स टू 33% of 16/21, right? Now we have to solve the equation in order to find the fraction. So let's try to solve this equation. It's 22 and ये 3, ये 2 times, यहाँ पे ये 3 times, right? And it's 10 out of 10, 20, 20, right? Then it's 2 and here it is 8, right? Then again it's 4 and it's 50. Then again it's 2 and 25. And then it will be 16/25. So this is our fraction, right? So here it is, and the third question. The third question is based on the successive percentage. So what is saying that after two successive hike, Arun's salary become 15/8 times of its initial salary. So by how much percentage was the initial salary was raised the first time if the second raise was twice as high as the first? So ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उस पे बेस्ड है, जो हमने फ्रैक्शन सक्सेसिव परसेंटेज में लेट करके जो हमने सीखा था, ये उससे बहुत ही इजीली हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो बेसिकली है वो सक्सेसिव परसेंटेज का है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट जो लगता है वो लेट वैल्यूज का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली गिवन क्या क्या है, गिवन हमें ये है पहला कि जो हमारी फाइनल जो सैलरी है, जो फाइनल सैलरी है वो कितनी है, 15/8 ऑफ इनिशियल सैलरी, एक तो ये गिवन है। फिर सेकंड चीज क्या गिवन है कि जो सेकंड रेज हुआ है, जो सेकंड रेज हुआ है वो मेरे फर्स्ट का ट्वाइस है, राइट। फर्स्ट का ट्वाइस, जो फर्स्ट सैलरी हाइक हुआ है सेकंड वाला जो है उसका ट्वाइस, राइट। लेट से अगर मैं फर्स्ट को एक्स मान लूँ, राइट, तो मेरा सेकंड परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, इट विल बी 2x, है ना। तो ये हो गया 2x का। तो अब इसको इन्फॉर्मेशन को लेके सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट इंक्रीज है और सेकंड इंक्रीज है उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो फाइनली हमारा फाइनल, सॉरी इट्स इनिशियल, राइट, इनिशियल, इट्स इनिशियल एंड इट्स फाइनल, राइट। तो इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी हमारी, 15 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि जो फर्स्ट इंक्रीज हुआ है वो x हुआ है और दूसरा जो हुआ है वो 2x हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम ऐसे ही लेट करते हैं कि जो 8 है वो किसका मल्टीपल बना सकते हैं। लेट से 4 और 2 बना लिया मैंने, 4 2 8, जो 15 है वो कितना हो जाएगा, 5 3 15, राइट। अब हम चेक करते हैं कि लाइक ये x और 2x की परसेंटेज इंक्रीज में फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 25% इंक्रीज हुआ है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 50%। तो जो इक्वेशन में हमें गिवन थी कि पहला परसेंटेज इंक्रीज x का होगा, दूसरा 2x का होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। लाइक जो पहला इंक्रीज हुआ वो 25% का हुआ और ये जो है उसका डबल है ना। यानी ये जो हमारी लेट वैल्यूज थी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये सीखना है कि इन वैल्यूज को कैसे लेट करते हैं या फिर कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, तो इसी चैनल पे सक्सेसिव परसेंटेज के नाम से एक वीडियो होगी, उसमें मैंने समझा रखा है कि कैसे इस शॉर्टकट को यूज करके हम क्वेश्चन, किसी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि फर्स्ट ईयर में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो इट्स 25, सो द आंसर वुड बी 25। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि आफ्टर 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज इन द सैलरी द सम ऑफ 1000 रुपीज टर्न इनटू 1331 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज हुआ है, यानी पहले साल अगर 10% का इंक्रीज हुआ है तो दूसरे साल भी 10% का इंक्रीज होगा, तीसरे साल भी 10% का ही इंक्रीज होगा। और ये 3 साल इंक्रीज होने के बाद जो उसकी सैलरी 1000 रुपये थी ना, और वो बढ़कर हो गई है 1331 रुपीज, ठीक है। तो अब हमें वो परसेंटेज फाइंड करना है, राइट, कि वो कितना परसेंटेज राइज हुआ है। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट हम सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
में क्या गिवन है हमें कि 4 इक्वल परसेंटेज राइज हुआ है, राइट। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, राइट। 3 इक्वल परसेंटेज एंड देन ओवरऑल हमारा कितना हुआ है, 1000 से जो हुआ है बढ़कर 1331। इसमें जो हिंट है ना, वो हिंट क्या है कि तीनों जो है, तीनों जो है इक्वल परसेंटेज राइज हुआ है, राइट। इसमें जो हिंट, सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन का क्या है कि तीनों इक्वल परसेंटेज राइज हुआ है, यानी अगर यहाँ पे जितना परसेंट राइज होगा यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी। तो मतलब अगर मैं कोई फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखूं, लेट्स से अगर मैं लिख दूं कि 2 से 3 बढ़ा है, तो नीचे भी 2 से 3 बढ़ेगा, इधर भी 2 से 3 बढ़ेगा, है ना। तो जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, 2 का क्यूब आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कोई क्यूब वैल्यू होगी, है ना। और वो उसे कैसे हम फाइंड कर सकेंगे कि लाइक अगर हमें यहाँ पे 8/9 दिया होता, तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लिख देते हैं, और ये जो हमारा बेस वैल्यू है 2 और 3, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो जाता। तो सिमिलर लॉजिक अगर यहाँ पे भी लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिमिलर लॉजिक अगर यहाँ पे भी लगाए, तो ये 1000 किसका स्क्वायर क्यूब है, इट्स 10 का क्यूब है, और ये 1331 किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है ना। दैट मीन्स कि पहले ईयर में 10 से 11 बढ़ा, फिर दूसरे ईयर में भी 10 से 11 बढ़ा, फिर तीसरे ईयर में भी 10 से 11 बढ़ा, यानी 10% का जो है हर साल राइज हुआ है। सिंपल, राइट। यही हमारा आंसर है। कितना आसान था ना। सिंपल, हमें लॉजिक लगाना है कि कितना लाइक 10 से 13 है। और जो यहाँ पे हिंट था, वो हिंट क्या था, हिंट था कि तीनों साल जो है वो इक्वल परसेंटेज राइज हुआ है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, इसका आंसर 10% होगा।